Good morning to one and all. Women, they are made for household works. Why they need to go out for earning? They don't need attention, education, they can't complete men. These were the words of people when women tried to do works that was said that it would be done by men. Being such a strong and powerful creation of God, women proved everyone wrong, shut every mouth that raised question with their hard work. Today, wishing you all International Women's Day. I, Kritik Prasad, want to share some words with you all about women, their strength, their importance, and appreciate all women out there in this world and why it is celebrated all over world. After the Socialist Party of America organized a Women's Day in New York City on February 28, 1909, German delegates Carla Zetkin, Ken Dunker, Paula Thayde, and others proposed at 1910 International Socialist Women's Conference that its special Women's Day be organized annually after women gained suffrage in Soviet Russia in 1917, become a national holiday there. The day was then predominantly celebrated by the socialist movement and communist countries until it was adopted by the feminine movement in about 1967. The UN began celebrating the day in 1977. Commemoration of International Women's Day today range from being a public holiday in some countries to being largely elsewhere. In some places, it is a day of protest. In others, it is a day of celebrated women'shood. Women are the most powerful creation of God, be it household, work, or any other work in the world. They have mastered everything. We can see women growing in each and every sector. For example, Sushma Swaraj, famous politician of BJP, a strong personality. Kamala Harris, who became a vice president of United States recently. Sara Al-Amiri, a lady who lead UAE Mars mission. Claire Holosa, who is said to become first female match official in men's text matches. Jasmine Harrison, who has become youngest woman to cross Atlantic Ocean. Saima Ubaid, the first Kashmiri women powerlifter. So we can see women are working and growing in each and every sector. Today, they are strong enough to decide what better for them. They are leading in every sector. In our country, India, women didn't get enough freedom in 16th to 17th century. There were many social evils also, but slowly women got wings. They worked hard and proved their worth and made people listen to them, recognize them, and appreciate them. The world is moving towards equality for both men and women. Women empowerment now become an important topic in this world. Women are getting empowered. They are managing both household and their dreams job gracefully. On the one side, where women are getting appreciation and recognition, on other side, there are still some problems which they are facing. Today, we will also talk about those problems. They often face some bad elements in their working place. Social media is also sometimes harmful for women if not used properly. In the name of trolls, many people comments bad on females, activists, actresses, and politicians. But government is also working in the favor of women. They launched many schemes for women's benefit, such as Beti Bachao Beti Padhao, Mahila Ihad, a direct online platform to support women entrepreneurs. Working Women Hostels. Emma Watson says, there is a greater understanding than ever that women need to be equal participants in our country, in our society, in our government, and in our workplace. Our world is becoming a better place for women to fly. Our country in India is also giving wings to women in form of schemes, equalities. Every male is recognizing the worth and capability of their daughter, wife, mother, sister, and every female.
and standing by their sides. So, let's celebrate women, let's respect women, let them fly and conquer the sky. Now, we will watch some women expressing their feelings and their opinions. From challenge comes change. As in women, we face challenge every day. Challenge to keep our family happy. Challenge to raise a happy child. Challenge to meet our work targets. Challenge to balance the harmony between personal and professional life. And above all, challenge to be safe in the society. This Women's Day, let's give all the women an opportunity and not a challenge. She is facing enough. Give her an opportunity to grow. Give her an opportunity to be herself. Give her the opportunity and not the challenge this year. Happy Women's Day to everyone. This is Ritika Gupta, Territory Manager, Oracle, Dubai. Thank you. आज मैं महिला दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बोलना चाहती हूँ, अपना संदेश कुछ देना चाहती हूँ महिलाओं के लिए। आज जो है इतना शुभ दिन है, आज हम लोग को स्त्री जाति को बहुत प्रोत्साहन मिला है, समाज की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी उत्साहित किया जा रहा है। इसलिए हम लोग को उसका लाभ उठाना चाहिए और अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दे करके उसको सही जगह पर उसको नौकरी के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अच्छे काम के लिए बढ़ावा देना चाहिए और लड़कियों को विशेष करके ज़्यादा सुविधा देना चाहिए। आज अपने तो मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन हाँ अपने बच्चों को मैं सही रास्ते पर आगे की ओर बढ़ा दी हूँ। आज मुझे दो बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी है। मैं अपनी बेटी को पढ़ा करके आज वह दुबई में जॉब कर रही है, बेटा भी पूना में आज इंजीनियर है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। उन लोग को देखकर ही मुझे अब उत्साहित लगता है कि मैं भी आगे कुछ करूँ और आगे समाज को अपने तरफ से कुछ दूँ और समाज के लिए कुछ कर सकूँ, आगे बढ़ सकूँ। आज सभी बहनों से मेरा अनुरोध है कि सभी बहनें आपस में मिलकर एकजुट होकर समाज के नारी उत्थान के लिए हम लोग एक दूसरे को सहयोग करें, समाज को आगे बढ़ाएं, लड़कियों को उत्साहित करें, उसको पढ़ने के लिए, उसको हर शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए, सम्मान में सर उठाकर जीने के लायक बनाने के लिए उत्साहित करें। सभी महिलाएं हम लोग जो हैं मिलकर सब अच्छा काम करें और बच्चों लोग को आगे की ओर बढ़ाएं, तभी हमारा देश, मेरा समाज, मेरे लड़कियों का भविष्य उज्जवल होगा और विकास करेगा। जब देश विकास करेगा, समाज विकास करेगा और साथ साथ परिवार विकास करेगा, उसके साथ सभी लोगों का ही विकास होगा। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं अन्नपूर्णा सिंह। मैं कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में रहती हूं और मैं अर्बन प्लानर हूं, मतलब मैं शहरों के सौंदर्यीकरण और विकास का काम करती हूं। महिला दिवस पर आप सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगी। हम हमेशा ये कहते हैं कि ये समाज पुरुष प्रधान है, पर समाज का 50% हिस्सा हम महिलाएं हैं। समाज हम भी तो बनाते हैं, फिर ये समाज पुरुष प्रधान कैसे बन गया? क्या हमने अनजाने में खुद ही तो अपने जीवन की डोर किसी और के हाथ में नहीं दे दी? हम हमेशा अपने आसपास सभी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, हम अपनी बेटियों को भी यही सिखाते हैं, पर क्यों हम अपने बेटों को अपने आसपास महिलाओं की, अपनी बहन की, अपनी पत्नी की इज्जत करना नहीं सिखाते? जानबूझकर बेटे और बेटी को दिए गए संस्कारों में हम ये अंतर क्यों करते हैं? इस महिला दिवस पर एक प्रण लें, एक भावी समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, अपने बेटों को दूसरी महिलाओं की इज्जत करना सिखाएं। ये समाज वैसा ही बनेगा जैसा हम और आप उसे बनाएंगे। हैप्पी वुमेन्स डे।
नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमारे लिए एक उत्साह से भरा हुआ दिन होता है, क्योंकि सशक्तिकरण हमारे लिए तभी हो सकता है जब महिलाएं खुद आगे आएंगी और खुद को सशक्त करेंगी। हम भारतीय संस्कृति में देखा जाए तो महिलाओं का स्थान जो है सर्वोच्च रहा है। हमेशा से उनको देवी की तरह पूजा गया है। कुछ असामाजिक तत्वों के कारण हम महिलाओं का शोषण होता रहा है, पहले भी और आज भी। आज वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो महिलाएं हर क्षेत्र में अव्वल आती रही हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो समाज कल्याण का क्षेत्र ले लिया जाए, घर में हो, घर में एक गृहिणी के रूप में कार्य करती हैं, सभी का ख्याल रखती हैं और साथ साथ वो खुद का भी ध्यान रखती हैं। लेकिन कभी कभी वो अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं। वो खुद इतनी व्यस्त हो जाती हैं अपने घर और बाहर के परिवेश में कि वो अपना ध्यान नहीं रखती हैं। लेकिन हम महिलाओं को यही कहेंगे कि घर भी देखिए, बाहर भी देखिए और खुद का भी ख्याल रखिए। सबसे पहले मैं सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, स्नेह और प्यार देना चाहूँगी। जो भी महिला देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी हैं, उन सभी को मेरी ढेरों शुभकामनाएं महिला दिवस की। और इस बारे में मैं सभी महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि अपना काम तो जो है सो है, परिवार है, सब कुछ है, समाज है, इन सभी चीज़ों में महिला कभी कभी कहीं खो जाती हैं, अपने आप को भूल जाती हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि वो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें, अपने आप को देखें, सभी चीज़ों को देखते हुए अपने आप को भी देखें। और दूसरी चीज़ कभी कभी ये देखने को मिलती है कि महिलाएं जो है अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कभी कभी झुकाती हैं, जो कि ये ज़रूरी नहीं है। अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हमेशा बचा के चलना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। और जब तक हम अपनी इज़्ज़त ना करें, हमें और क्या इज़्ज़त देंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी इज़्ज़त खुद करें, तभी और लोगों से भी मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं कहीं आज के समय में ये भी है कि कुछ लोग हैं जो गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से और लोगों को परेशानी होती है। तो उन महिलाओं को मैं कहूँगी कि उस तरह की गलतियां ना करें, अपने आप को थोड़ा संभालें, अपने आप को समझने की कोशिश करें। क्योंकि एक स्त्री है, वो शक्ति है, ऊर्जा है, जननी है। एक स्त्री में पूरी दुनिया समाहित है। इसलिए वो अपने आप को समझें और अपने स्नेह से, प्यार से दुनिया को रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं जनक किशोरी, सामाजिक कार्यकर्ता और महिला उद्यमी। आप सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देती हूँ। इस बार का थीम है चूज टू चैलेंज और सभी महिलाएं कुछ न कुछ चैलेंज लेकर जीती हैं, चलती हैं, काम करती हैं। तो उन सभी महिलाओं को मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि आप अपने चैलेंज को बखूबी निभाएं। और प्रत्येक महिला, चाहे वो घर में काम कर रही हो, बाहर हो, एक माँ है, बहन है, पत्नी है, बेटी है, सभी महिलाओं को मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। आप आधी आबादी हैं, आप से ही देश है, संस्कृति है, समाज है, जननी है। तो आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में तेरे नाम की तख्ती न थी, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। हैप्पी वुमेंस डे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। जगदम्बिका अंबिका, जगदम्बिका अंबिका,
सुरभि शौर्य। आप सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, यह वो नारी है जो हर घर को स्वर्ग बनाती है। तो फिर से आप सभी खूबसूरत महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा प्रणाम।